أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورة الواقعہ آیت نمبر 49 قل ان الاولین بے شک آپ کہہ دیجئے کہ اگلے لوگ والآخرین اور پچھلے لمجموعون سب اکٹھے ہونے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب لوگ اکٹھے ہونے والے ہیں الی میقات ایک وقت پر یوم معلوم مقرر دن کے ایک مقرر دن کے وقت پر ثم انکم پھر تم لوگ ایھا الضالون اے بہکنے والو المکذبون اور جھٹلانے والو لآکلون البتہ کھاؤ گے من شجر ایک ایسے درخت سے من زقوم جو زقوم کا ہے فمالئون اور بھرو گے منہا اس سے البطون اپنے پیٹ فشاربون پھر پیو گے علیہ اس سے من الحمیم ایک کھولتا ہوا پانی فشاربون اور پیو گے اس کو شرب الہیم جیسے پیتے ہیں پیاسے اونٹ ھذا نزلہم یہ ان کی مہمانی ہے یوم الدین انصاف کے دن۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ میں 3 گروہوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سابقین الاولین کا ذکر کیا گیا اور سابقین اولین کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا جو سب سے اعلیٰ اور افضل بہترین تھیں۔ اس کے بعد اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا، ان کی نعمتیں بھی بے شمار۔ اسی طرح سے اصحاب الشمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اصحاب الشمال کے تذکرے میں ان کے گناہ کا بھی ذکر کیا۔ کہ ان کا گناہ کیا تھا، وہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے والبعث بعد الموت، اور وہ لوگ اسی بات کا انکار کرنے والے تھے کہ کیسی ناممکن بات ہے انسان مر جائے اور مٹی میں اس کے اجزاء مل جائیں، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اور ہمارے آباء و اجداد جو آج سے صدیوں زمانوں پہلے زمین کے اندر مر کے مٹی ہو گئے، گل سڑ گئے، وہ دوبارہ اٹھا دیے جائیں۔ اور اتنی واضح حقیقت کا انکار کرنے کے پیچھے اس بات کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مر کے مٹی ہو جانے کے بعد اس انسان کا ایک نام، ایک وجود، ایک تذکرہ تو دنیا میں آ گیا۔ تو جو رب اس وقت بنانے پہ قادر تھا جب اس کا کوئی نام نہیں تھا، جب اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، جب وجود کے کوئی باقیات نہیں تھے، تب وہ رب بنا سکتا ہے تو وہی رب تذکرہ آنے کے بعد بنانے پہ قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تمہارے ہی آباء و اجداد کو زندہ کیا جائے گا۔ ان الاولین جتنے اولین گزر گئے، تم سے پہلے جتنے بھی تھے، تمہارے بعد جتنے بھی آئیں گے، بڑی ہستیاں ہوں، چھوٹے ہستیاں ہوں، ایمان والے لوگ ہوں، کافر لوگ ہوں، ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں، کفر کے گئے گزرے ترین دور سے گزرے، ہر حال میں ہر انسان کو جمع کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جمع ہونے کے لیے دنیا کے دستور کے مطابق امیروں کا وقت الگ ہو، غریبوں کا الگ ہو۔
मीक़ात यौम मालूम, सबके लिए एक वक्त, एक दिन मुकर्रर है। उसी दिन उस मुकर्रर वक्त के अंदर सबका हिसाब किताब होगा, सबको इकट्ठा किया जाएगा। और इस इकट्ठे होने के पीछे मकसद यही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया इस्तेमाल के लिए सबको एक जैसी दी। अब हर इंसान ने उसको किस तर्ज पर इस्तेमाल किया, इसका हिसाब किताब। एक इंसान को अंगूर का बाग दिया, उसने हलाल जरिए से अंगूर ही बेचा और कमाई की। एक इंसान को अंगूर का बाग दिया, उसने शराब बनाना शुरू कर दी, पैसे दोनों ने कमा लिए। अंगूर के उगने पकने के तरीके एक ही थे, तोड़ने के तरीके एक ही थे। फिर तब्दीली उस वक्त में आ गई जब बेचने की बात आई। एक ने हलाल कर लिया उसको, एक ने हराम कर लिया। पैसे कमाए, दिन और रात की मोहलतें हर किसी को दी। किसी ने हलाल तरीके से रिस्क रोजी कमाई, मजदूरी की, मेहनत की। किसी ने चोरियां और डाके किए। तो कहा ये वक्त है एक मुकर्रर, जिसके अंदर हर इंसान का, मुसलमान का, काफिर का, नाफरमान का, ना मानने वाले का, मानने वाले का, सबका हिसाब किताब होगा। और उस दिन जैसे दुनिया के अंदर इंसान अमूमन तभी बात को झुटलाता है जब उसकी अपनी जरूरियात मुकम्मल होती हैं। जैसे इनके सिफ्त में बयान किया कि दुनिया में वो लोग खुशहाल थे, तो इसमें एक इशारा है कि अमूमन वो लोग जो माल और दौलत की फरावानी में हो, बात उन तक ही पहुंचाना मुश्किल हो जाती है। और अमीर तबके का यह ख्याल होता है कि दीन पे अमल करना तो सिर्फ गरीबों के लिए है। और यह मिसाल देते हुए वो सबसे पहली इस्लाम लाने वाली खातून को भूल जाते हैं, जो बहुत बड़ी ताजरा थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये मिसाल देते हुए वो अज़ीमुश्शान हस्ती को भूल जाते जिनको सिद्दीक के लक़ब से नवाजा गया, जो बहुत बड़े कपड़े के ताजर थे। अगर ईमान लाना और इसके जुज़ियात पे अमल करना गुरबा का काम होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर हुक्म के साथ ये खसूसियत लगा दी होती कि ये काम गरीबों के करने के हैं, मालदारों को तो माल की वजह से बख्श दिया जाएगा। और यहीं पे असल पकड़ है कि माल वाले के लिए उसका माल क़यामत के दिन ढाल नहीं बनेगा। ये दुनिया के दस्तूर हैं जहाँ पे अमीरी और गरीबी के फ़र्क किए जाते हैं। तो दुनिया के अंदर जुटलाने के लिए और बहकने के लिए जो सबसे एक बड़ी वजह होती है वो इंसान का माल है। और उस माल को इंसान अमूमन अपने रहन सहन, लिबास, खुराक, पोशाक में ही इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले कहा कि जो चीज़ दुनिया में तुम अपने लिए तरह तरह की खुराक तलाश किया करते थे कि हम इस किस्म के खाने के आदी नहीं हैं, उस किस्म के आदी हैं, हम हाथ से नहीं खाते, हम उस चीज़ से खाते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ाओं की तलाश में रहते थे। आज सबसे पहले जब तुम्हें भूख लगेगी तो अपने पेट को तुम्हें भरना पड़ेगा ज़क़ूम के दरख्त से। और ये एक पौधा होता है, यहाँ पे इसको दरख्त कहा गया। दुनिया में जो इसकी मिसाल लोग देते हैं वो तो पौधा है, दरख्त नहीं है। लेकिन चूंकि ये बात आखिरत के अहवाल के हवाले से है, लाजमी नहीं है कि दुनिया में वो ज़क़ूम मौजूद भी हो। और ये बिल्कुल वैसा ही ज़क़ूम हो जैसे कि आखिरत में होगा। जैसे हमने पढ़ा कि आखिरत में जन्नत में एक अनार इतना बड़ा होगा जैसे मटके होते हैं, अंगूर के दाने और गुच्छे ऐसे होंगे जो पूरे पूरे ख़ानदान को मुकम्मल सैर कर सकेंगे। तो ये चीज़ दुनिया की खुराक में मौजूद नहीं है।
तो दुनिया के अंदर ऐसे दरख्त का पाया जाना बअन ही इन सिफात के साथ, ये कोई ज़रूरी और फ़र्ज नहीं है। आखिरत के अहवाल का तज़किरा है कि एक ऐसा दरख्त है जो बदबूदार भी है और जिसमें कांटे लगे हुए हैं, जिससे कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात से ये सिफात साबित हैं। और कहा कि सिर्फ ये चखने के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि फमालिऊन मिनहल बुतून, अपने पेट इसी से भरने पड़ेंगे तुम्हें। फिर इस खाने की बदमज़गी की वजह से जब तुम्हें प्यास लगेगी, तुम्हारी प्यास बढ़ जाएगी, तो पानी मांगोगे और पानी पीने के लिए ऐसे मिलेगा मिनल हमीम, जो खोलता हुआ होगा। और कितना गर्म होगा, लोहे के बर्तनों में होगा। दुनिया में एक मुशाहिदा है, अगर खाने की कोई चीज़ गर्म है और उसमें हम चम्मच रख देते हैं तो उस चम्मच को मुंह लगाना मुश्किल हो जाता है, वो गर्म है इतनी। तो लोहे के बर्तनों में जब खोलता हुआ पानी डाला जाए, उसको तो पकड़ना ही बहुत हिम्मत है, पीना दूर की बात। तो उसकी सिफ्त ये कुरान पाक की दूसरी आयत में बयान की जाती है, जब उसको मुंह के करीब लाएंगे तो चेहरे की तमाम जो जल्द है वो खाल समेत उसके अंदर गिर जाएगी। फिर भी पिएंगे, फिर भी उसके पीने से बाज नहीं रहेंगे, प्यास इतनी है। और कहा कैसे पियोगे, फशारिबूना शुरबल हीम, जैसे प्यासे ऊंट पानी को हड़बड़ाहट में पीते हैं, कितना भी पी लें वो सैर नहीं होते। तो ये जहन्नम की सिफात हैं, जहाँ जन्नत की सिफात हैं कि एक घूंट के पानी से तमाम जिंदगी की प्यास खत्म हो जाए। वो जहन्नम का पानी है कि सारी जिंदगी उस पर उल्टे लेट कर उसको पीते रहें, पीते रहें, पीते रहें, प्यास खत्म नहीं होगी। अल्लाह हमें इस जिनकी सख्तियों से और इन चीज़ों से अपने हिफ्ज़ मन में रखें। महज उसके फजलो करम से हम बच सकते हैं, हमारे अमाल तो हमें इन चीज़ों से नहीं बचा सकते। और अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा नुज़ुलुहुम, ये उनकी मेहमानी है यौमुद्दीन, इंसाफ के दिन। इंसाफ, अल्लाह फरमाते हैं इंसाफ का तकाजा है, ये जो उनको दिया मैंने, ये मैंने जुल्म नहीं किया, ये इंसाफ का तकाजा है। क्योंकि 3 रास्ते मैंने बता दिए, यह साबिक़ून अल अव्वलीन का रास्ता है, यह अस्हाबुल यमीन का रास्ता है, यह अस्हाबुल शमाल का रास्ता है। तीनों की आमाल और अफ़आल की कैफियत भी बता दी, तीनों के किरदार भी बता दिए, तीनों के नताइज भी बता दिए। तो हर एक नतीजा इंसाफ का तकाजा है, हर एक नतीजा इंसाफ का तकाजा है, वो किसी के साथ बेइंसाफी नहीं है। तो अल्लाह करीम हमें अपने खास फजलो करम से अस्हाबुल शिमाल की फहरिस्त से दूर रखें। अगरचे हमारे काम सारे ऐसे ही हैं, लेकिन हम महज उसके फजल के तलबगार हैं, और अल्लाह हमें ये अपने फजल का तलब करना भी अता करके ही रखे। हमारे दिल में ये यकीन अल्लाह हमेशा बना के रखें कि वही देने वाले हैं, हमारे दिलों से ये यकीन कहीं ना जाए। अल्लाह करीम जो कुछ कहा, जो सुना, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने बेहतरीन बंदों की फहरिस्त में हमें शामिल रखें। जो काम, जो अमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, उनका करना हमारे लिए आसान फरमा दें, और जो काम उसको नापसंद है, अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।